Good morning, students. We will continue with our chapter Principles of Service Transition. In that, in second principle, we are just learning the steps. Out of that, 6 steps we have already learned. Okay, 7 step of second principle we are going to learn today. The seventh principle or seventh step in second principle tells us that establishing a effective controls and discipline which is very much required in the transition phase. I will just revise for you what is the transition phase. Here in strategy a brief plan is made, in design the detailed plan is made and architecture is made, and in transition we test those idea in a live environment but not actually start the operation. So everything, whatever changes, whatever things, whatever we have to verify about service so that we can deliver a proper value to the customer, we have to get it done in the transition phase, because after this phase only operation phase will there, and there we need we might having a chance to change or improve ourselves, but it will look bad if something goes wrong. So we are having only one phase now, transition phase, where we have to get all the things corrected. So for that, we need to establish effective control and disciplines. The policy here of this step is that establish a appropriate control and disciplines during the service life cycle, entire service life cycle, or most probably in the transition service life cycle, to facilitate the smooth transition of service changes and release. So here there might be some things that are mentioned in the design phase, and because we are testing it in live environment or live setup, so we might encounter or some for few changes that needs to be done. That has to be done smoothly so that it will not affect the overall strategy, overall design, and also it will not affect at the time of operation. What are the principles in that particular step? Establish and maintain integrity of all service assets. So what do we talk about integrity? Accuracy, reliability, resilience, all these particular characteristics we supposed to maintain in accordance with our service assets. So what comes under service assets? Our skills, our people, our hardware, our software, everything comes under assets and configurations identified as they evolve through the transitional service phase. Because in this phase, we will identify all the assets are working properly or not and how to maintain them. Most possibly or most probably, we should automate the audit activities. So automation will bring the speed and accuracy in our work, even though it is a audit. Service transition is nothing but a testing, and testing in another word we can refer as a audit. One type of audit ही है, वहाँ पे check and verify किया जाता है plan and design properly हुआ है या नहीं. So we need to automate audit activities to increase the detection of unauthorized change. Unauthorized changes कौन से होते हैं? जो अनऑथोराइज या जिसको मतलब प्रॉपर चेंजेस नहीं है, वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं. ऑडिट ऑटोमेट करने से हमको पता चलेगा, बिकॉज आईटी सर्विस है, and we will also able to find out discrepancies, differences in the configuration where it is appropriate. So that's why we need to have an effective control and disciplines. अगर कंट्रोल नहीं रहेगा टेस्टिंग का, वेरिफिकेशन का, ऑडिट का, तो ये सारी चीजें हमको पता नहीं चलेंगी. वी नीड टू डिफाइन क्लियरली हु डज व्हाट, किसका क्या जॉब रोल है, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो कब क्या कहाँ पे करेगा, कहाँ पे अकाउंटेबिलिटी घटाना है, कहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है, किसको रोल चेंज करवाना है. ओके, फॉर डिलीवरी अगेंस्ट द प्लान एंड प्रोसेस, बिकॉज दिस कैन बी पॉसिबल ओनली टिल ट्रांजिशन फेज. ऑपरेशन फेज में आने के बाद अगर हम सडनली चेंज करते हैं तो देयर विल बी मेस. तो जो भी कुछ चेंजेस करना है, okay, in regards with the job responsibility also has to be done with effective control and discipline in the transition phase itself. We also need to define and communicate roles and responsibility for delivery acceptance through transitional service, for example building, testing, releasing, deploying. Here, why we are doing this? To reduce misunderstanding and lack of ownership error. So now what is lack of ownership or ownership? Taking accountability of problem. पीपल जस्ट गिव इट अवे कि मैंने नहीं किया, ये दूसरे का फॉल्ट था. ब्लेम गेम चलते रहता है. बट जब लाइव एनवायरनमेंट में टेस्टिंग होगा और कंट्रोल और डिसिप्लिन रहेगा तो हम लोगों को पता चलेगा, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएंगी. प्लस पीपल ओनरशिप लेंगे, अकाउंटेबिलिटी लेंगे कि किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ. तो जिम्मेदारी तय हो जाती है इस फेज में विथ इफेक्टिव कंट्रोल एंड यूज.
Establish transaction-based configuration, modification, problem management process to provide audit, trial, and management information needed to improve the control. How to achieve this principle? How to implement this principle with the help of best practices to ensure that roles and responsibility of those involved are well defined, documented, okay, and understood by and mapped by any relevant process or current or predicted circumstances. For current and predicted circumstances, so लोगों को अपनी जॉब की जिम्मेदारियां देते वक्त उनको बताया जाएगा कि आपका ये काम है, ये ऐसे ऐसे पर्टिकुलर स्टेप्स आपको करना है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका अकाउंटेबिलिटी है, प्लस उसमें फ्यूचर प्रेडिक्टेड सर्कमस्टेंसेस के बारे में भी लिखा है कि अभी इस तरीके से करना है, लेकिन अगर डिजास्टर आता है, कुछ गड़बड़ी होती है, तब भी कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, नॉट रिएक्ट, कैसे एक्ट करना है, वो भी मेंशन होगा. दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस. असाइन इंडिविजुअल्स टू ईच रोल. हर एक रोल के लिए एक ही बंदा रखने का कोशिश कीजिए. ऑब्वियसली छोटी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तो एक से ज्यादा रोल रहेंगे, लेकिन बेटर इज दैट हर एक को अगर एक सिंगल रोल मिला तो दे विल बी वेरी मच क्लियर अबाउट व्हाट टू डू and what not to, and they will maintain the task of providing visibility to person responsible for specific activities in service acknowledgement system, that is called as SKMS. हम लोग आगे पढ़ेंगे. और configuration management system. Here, to establish control, the best practice is also that implement integrated incident, problem, change, configuration level management process to measure that quality configuration of items throughout the service life cycle. Here, इंटीग्रेशन ऑफ इंसिडेंट प्रॉब्लम चेंज, इसी में प्रॉब्लम हो, इसी में जरूरत लगती है इफेक्टिव कंट्रोल की. तो ये इंटीग्रेटेड वे से होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए. Ensure that service can be managed, service can be operated, and also supported by service provider organization in accordance with requirement and rules and regulation in the service design. कंट्रोल या फिर हम लोग जिसे इफिशिएंसी बोल रहे हैं वो होना चाहिए, बट एज पर द मेंशनिंग इन स्ट्रेटजी या फिर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी के हिसाब से, या फिर डिजाइन फेज में जिस तरीके से प्रेडिक्ट किया गया है या फिर लिख कर दिया गया है उसी तरीके से होने का कोशिश करना चाहिए. इंश्योर दैट ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन कैन मेक द चेंजेस, दैट इज अनऑथराइज चेंजेस होने नहीं चाहिए, सो दैट जिसको अथॉरिटी है, जो बंदा कर सकता है, उन्हीं को चेंजेस करने का, प्लस उसी चेंजेस होने के बाद उसका कंट्रोल टेस्ट करने का, और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, मतलब लाइव ऑपरेशन एनवायरनमेंट में वो चेंजेस इंप्लीमेंट करने का अलाउ होना चाहिए. दैट इज अनदर पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग. कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट्स एंड प्रोसेस ऑडिट होने चाहिए, so that we can identify the discrepancy, non-compliance, and etc. The next step in second principle is provide system for knowledge transfer and decision support. This becomes important. मतलब यहाँ पे कुछ तो भी ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे कोई बंदा अगर अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, हमारी मल्टीपल टीम्स काम कर रही है, तो दैट नॉलेज सपोज टू बी शेयरेबल, सो दैट एक के एक्सपीरियंस का फायदा दूसरे को होना चाहिए. और प्लस उसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो ऑटोमेटेड होते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, उसका भी सपोर्ट मिलना चाहिए. सर्विस ट्रांजिशन डेवलप द सिस्टम एंड प्रोसेसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फॉर इफिशिएंट ऑपरेशन. ट्रांसफर ऑफ नॉलेज मतलब क्या होगा? एक दूसरे का प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, कैसे काम करते हैं सब लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा. ऑब्वियसली एक्सपर्ट ट्रेनर विल ट्रांसफर हिज नॉलेज टू other people and they will transfer to other people. In that way, whole organization will become a knowledgeable, okay, for service, and it enables competent decision maker to make decision at the right time. If the adequate knowledge or adequate information is available with each and everyone, so those who are having responsibility to make decision, they can make it easily on the basis of knowledge they gathered. What are the principle of this particular step? Provide the right people at the right time with quality data, information, and knowledge to reduce the effort they have spent in waiting and decision and consequent delay. ओके, क्यों? उन लोगों को सही टाइम पे सही डेटा, क्वालिटी डेटा, एक्यूरेट डेटा, इंफॉर्मेशन अगर मिलेगा, नॉलेज अगर रहेगा, तो दे विल रिड्यूस द वेटिंग टाइम, और जो उसकी वजह से जो नुकसान होने वाला है वो रिड्यूस करेंगे. द फर्स्ट प्रिंसिपल, इंश्योर एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज. तो ऑब्वियसली सारे यूजर्स को अगर हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो दैट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रेनिंग कॉल्स. मतलब वापस से ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं गिरेंगी ड्यूरिंग द सर्विस डेस्क. अगर हमारे लोग सही ढंग से काम करेंगे तो जो सर्विस डेस्क का ऑलरेडी मैंने आपको डेफिनेशन दिया. सर्विस डेस्क क्या होता है? कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में का कॉन्टैक्ट पॉइंट रहता है, जैसे कॉल सेंटर जैसे हम लोग बात करते हैं. जब हमारे प्रोडक्ट ने या हमारी सर्विस ने अगर हमारे
लोगों ने सही तरीके से सर्विस अगर डिलीवरी कर दी तो कस्टमर केयर को कोई क्यों कॉल करेगा? ओके, there are some people I can find out in India, they do time pass by unnecessarily making call, but that is jokes apart. That is a different case. We are talking about a proper सर्विस। अगर हम लोगों ने एडिक्वेट ट्रेनिंग दिया है और ट्रांसफर ऑफ नॉलेज अगर हुआ रहेगा तो हमारे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो हम लोगों को बाद में फिर ऑपरेशन फेज में कॉल हैंडल नहीं करने पड़ेंगे। We also need to improve information and data quality in order to improve satisfaction of users and stakeholder while optimizing production and maintenance cost. So data quality also have is effect on optimization of production and maintenance cost. Quality of data रहेगा तो obviously quality of service रहेगा, तो maintenance ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। Plus we have to improve the quality documentation. It will also reduce the number of incident and issue caused by user documentation. अगर डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीजें विद डिटेल लिखी रहेगी तो पीपल कैन हैंडल देयर ओन बिफोर द प्रॉब्लम कम्स, दे विल रियलाइज दैट। सो यूजर डॉक्यूमेंटेशन, रिलीज डिप्लॉयमेंट और सपोर्ट ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट पुअर क्वालिटी रहेंगे तो प्रॉब्लम आता है, वो रहना चाहिए। और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ नॉलेज रिपोजिटरी। अगर यूजर को सही यूजर मैनुअल मिला तो दिस इज वन काइंड ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट। ट्रांजिशन फेज होने के बाद जो हमारा स्टेप्स होने वाला है या फिर जो हमारा पर्टिकुलर व्हाट वी आर सेइंग प्रोडक्ट या सर्विस यूजर को यूज करने के लिए मिलने वाला है, वो क्वालिटी होना चाहिए। वॉट एवर क्वालिटी थिंग्स वी रिक्वायर टू एनफोर्स इन टू आवर सर्विस हैज टू बी डन इन ट्रांजिशन फेज। ओके, in order to reduce the number of incidents, that will reduce the number of and problems that may cause in because of poor things. Provide easy access to quality information in order to reduce time spent on searching, finding information, especially during critical activities such as incident handling. अगर information available है, easily availability of information है, so people, our worker, our employee will use that information to correct the incident. अब यहाँ पे फिर से एक बात आती है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए लेकिन ऑथोराइज पर्सन को। ओके, नॉलेज ट्रांसफर के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? फैसिलिटेट द प्रॉपर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सेस, प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग टूल्स इन जॉय ऑर्डर। तो उससे क्या होगा, अगर टूल्स हम लोग यूज करते तो ऑटोमेशन होगा, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन जल्दी रहेगा। यू नो दैट अगर कंप्यूटराइज चीजें रहेंगी तो हम लोगों को फास्ट नॉलेज ट्रांसफर होगा। दिस टू databases with quality user interface and tools for different people and decision making roles at the right time. So अगर एक सॉफ्टवेयर के जीयूआई के फॉर्म में रहेगा तो लोगों को और आसान जाएगा यूज करने के लिए, नॉलेज को यूटिलाइज करने के लिए। The next job best practice is that we should summarize और publish together the risk profile क्या है, प्रेडिक्टेड एंड अनप्रेडिक्टेड इफेक्ट चेंजेस क्या होंगे, वेरिएशन फ्रॉम एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड कैपेसिटी कैसे हो रहा है, ओके, परफॉर्मेंस में भी कुछ डिफरेंसेस आ रहा है क्या, इसका समरी हमको करना पड़ेगा। लेट अस से 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद आफ्टर टेस्टिंग, एंड गिव इट टू अवर एम्प्लॉयज, so they will come to know that what we have promised, and because of some mistakes that is not happening, everything goes smooth, so then there is no problem. But here we are trying to find out, transition phase is nothing but almost a टेस्टिंग फेज है लाइव एनवायरनमेंट का। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हियर वी ऑल्सो इंश्योर द सर्विस एसेट कॉन्फ़िगरेशन एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इज सपोज टू एक्यूरेट, and that will help us to trigger the decision making approval and notification transaction through workflow tools. For example, whatever modifications, acceptance of delivery, so that in live environment will come to know. So if sometimes our hired in live testing environment, if we come to know that something is not proper, then we need a approval to make it proper. So that will be done here only through the knowledge sharing. Provide the deployment, service desk, operation and support team with knowledge, information and data that will help them to solve incident and error. Next, now this is the last step of principle number 2. So I'll just revise that. Okay. So in service transition management, till the time we have learned only two principles, first one and second one. In second principle, there are 8 steps given, and every step has its own policy, principles, and best practices. Now, as per the numbering goes, we are going to start
the principle number third, 6.2.3, plan, release and deployment packages. So now this is the separate principle. So policy of this principle will be release packages. Now, what do you mean by release packages? Once we are sure that service is ready to deploy, so that service is called as our deployment package or release package. Okay. These are planned and designed to be constructed, tested, delivered, distributed, and deployment in live environment, that is in transition phase, which will offer agreed traceability level. यहीं पे हम लोग ट्रेस करेंगे कि एग्रीड लेवल ऑफ वैल्यू कस्टमर को मिल रही है या नहीं, प्लस दैट सपोज टू बी इन कॉस्ट इफेक्टिव एंड efficient manner. There are few principles of this particular principle only. The company and all relevant parties must agree on the release policy. So that means the company means service provider, देन रिलेवेंट पार्टीज में कस्टमर और सप्लायर और आपके एम्प्लॉय आते हैं, उनको सबको रिलीज पॉलिसी में एग्जैक्टली क्या क्वालिटी हम कस्टमर को देने वाले हैं वो एग्री होने चाहिए. रिलीज इन एडवांस सेस आर प्लान्ड वेल. ओके. सो अगर आप लोग रिलीज करते हो और इन एडवांस में आपके रिलीज के पॉलिसीज रेडी रहती है तो दैट इज प्रॉपरली प्लान करना चाहिए. ओके. यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस में आप लोगों का स्किल और टूल्स टेक्नोलॉजी आता है. सपोज टू बी ऑप्टिमाइज थ्रू आउट द सर्विस एंड ट्रांजिशन टू रिड्यूस द कॉस्ट. डिजाइन फेज में भले ही हम लोगों ने अच्छे तरीके से लिखा है कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज करने वाले हैं इन डिटेल विद द आर्किटेक्चर स्टेप बाय स्टेप एंड विद एवरी एक्टिविटी, बट यहाँ पे आपको ट्रांजिशन फेज में क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा. ऑप्टिमाइजेशन मतलब कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस. दैट इज व्हाट माय डेफिनेशन इज हियर. ओके. सो दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट. कम रिसोर्सेज, ज्यादा परफॉर्मेंस, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड. एक मतलब डिप्लॉय रिलीज डॉक्यूमेंटेशन के साथ जब डिप्लॉयमेंट एक्चुअल सर्विस कस्टमर को दे रहे हो तो वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ देना चाहिए. टू होम, service owner and employee in coordination with customer and as well as suppliers. इमरजेंसी रिलीज कभी कभी ट्रांजिशन फेज के लास्ट लास्ट प्रोसेसेस में पता चलता है कि कुछ चीज़ें हम लोगों को चेंज करनी है. सो दैट चेंजेस का जो रहता है पैच या अपडेट जिसे हम सॉफ्टवेयर में बोलते हैं, दैट आर रेफर्ड हियर एज इमरजेंसी रिलीज. दैट सपोज टू मैनेज इन अकॉर्डेंस विथ प्रोसीजर फॉर इमरजेंसी चेंज. सो चेंज मैनेजमेंट का जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन फेज में नेक्स्ट चैप्टर में, वहां पे मैं आप लोगों को इस पे और डिटेल में बताऊंगा. बट दैट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल दैट इट शुड बी मैनेज अकॉर्डेंस विथ प्रोसीजर. रिस्क ऑफ रिकवरिंग और रीमेडिएटिंग फेल्ड रिलीज और आर मस्ट बी इवेल्युएटेड एंड मैनेज. रीमेडिएटिंग और फेल्ड रिलीज क्या रहता है कि कुछ रिलीज हमने किया लेकिन वो पीपल का या फिर कस्टमर का एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में फेल हो जाता है. मतलब हमारे एंड से तो हमने रिलीज किया लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन या एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में वो पास नहीं हुआ, तो उसको भी इवेल्युएट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ. वट एवर रिलीज वी आर गिविंग, वट एवर डिप्लॉयमेंट पैकेज वी आर गिविंग, उसका सक्सेस एंड फेल्यूर दोनों भी, सक्सेस हुआ तो क्यों हुआ, फेल्यूर हुआ तो क्यों हुआ, इज सपोज टू बी मेजर्ड because we want to bring improve our efficiency and effectiveness while optimizing the cost. To achieve this, there are some best practices. ऑल रिलीज एंड अपडेट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम. एक डेटाबेस है, आप लोगों ने सीएमएस में बोला है. तो कौन सा वर्जन कर रहे, कौन से पैचेस किए, कौन से चेंजेस किए, उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन सीएमएस सिस्टम में मेंशन रहेगा. रखना चाहिए ताकि वो एक नॉलेज रिपोजिटरी भी बनता है और रिलीज और डिप्लॉयमेंट के वक्त काम में आता है जो लोग वर्क कर रहे हैं उस पर. यू हैव टू हैव डेफिनेटिव वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. नो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका हार्ड डिस्क और सारा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर भी आते हैं. दैट मस्ट बी कैप्चर्ड. डेफिनेटिव मीडिया इज कॉल्ड एज डी. ओके. डेफिनेटिव इलेक्ट्रिक डीएमएल वो बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. But these are having their own characteristics and they are working for longer duration. That's why that is called as hardware and software. Okay, definitive versions of electronic media. They are supposed to be captured in definitive media library DML. So एक रिपोजिटरी रहेगा अलग से अंडर द CMS जहाँ पे सिर्फ जो चीजें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रह रहे. डेफिनेटिव क्यों बोलते हैं उसको, क्यों हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक हार्ड डिस्क 2 साल सही ढंग से चलेगा, एक सॉफ्टवेयर तो डजंट वेयर आउट तो कितना दिन तक चलेगा. So that's why they are comes under the category of definitive media library. और definitive इसलिए because we are going to use them.
उसका एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे गैदर होना चाहिए बिफोर रिलीज टू द रेडीनेस टेस्ट एनवायरमेंट फॉर सर्विस ऑपरेशन। रिकॉर्ड द शेड्यूल्ड रिलीज, कब कब शेड्यूल रिलीज कब होने वाला है, कब उसके डेट्स क्या है, उस डेट पे क्या डिलीवर होगा, रेफरेंसेस टू रिलेटेड चेंजेस एंड इश्यूज सपोज टू बी रिकॉर्डेड। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। देन प्रूवन हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। ये प्रूव कैसे होगा? बिकॉज लाइव एनवायरनमेंट में हम करके देखेंगे तो प्रूव होगा कि हमारा हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और रिलीज और डिप्लॉयमेंट प्रोसेस और वेरिफिकेशन प्रोसेस इन द प्लेस है या नहीं, वो वर्क कर रहा है या नहीं, उसको प्रूव करो लाइव एनवायरनमेंट में। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। रिलीज रिक्वायरमेंट एंड को रिक्वायरमेंट शैल बी डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द पार्टीज कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट एनवायरनमेंट में टेक्निकल रिक्वायरमेंट आपको देनी पड़ेगी। So next is anticipate and manage course correction. What do you mean by course correction? So sometimes something happens, and at that time, where whatever decisions we make to correct that particular thing, incidents or problem, are called as course correction. When we are drawing up a long route for a ship or aircraft, there is an example. Students, you have to carefully listen to understand the concept. When we are drawing up a long route for ship or aircraft, prevailing winds, weather and other factor and travel plans are assumed. अगर हम लोगों को एक लॉन्गर ड्यूरेशन का एरोप्लेन का, एयरक्राफ्ट का या फिर शिप रहेगा तो वो पानी में जाएगा, तो वहाँ पे जो उसको रेजिस्ट करेगा, उसमें हवा रहता है, हवा के हिसाब से उसमें कितना फ्यूल लगेगा वो लोग, हम अगर हवा अपोजिट डायरेक्शन में रहती तो हो सकता है फोर्सफुली इंजन का कंबशन ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा पर्टिकुलर फ्यूल लगता है। वेदर, वेदर कंडीशन की वजह से अलग रखता है। ओके, फॉर एग्जांपल शिप अगर हम बोलेंगे पानी में, तो पानी का बहाव अगर सीधा रहेगा या फिर जहाज के साथ रहेगा तो अलग फ्यूल लगता है। सो ये सारी चीजें फॉर कैलकुलेटिंग समथिंग फॉर ट्रैवल प्लान, दीज आर अज्यूम्ड. So checks on the way observation based on actual condition required. So usually minor changes ensure that destination is reached. So अगर किसी एक शिप को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने के लिए अगर 1 आवर लगता है, लेकिन अगर उस दिन वाटर फ्लो वहाँ का डिफरेंट तरीके से रहेगा तो 1 आवर से शायद कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट ये माइनर चेंजेस होंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. आप बोलोगे कि कोर्स करेक्शन का ये यहाँ पे डिस्कशन इसलिए हो रहा है कि हमने प्लान किया, स्ट्रैटेजी बनाई, डिजाइन बनाया, ट्रांजिशन में टेस्ट किए, फिर भी हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हम लोगों को कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट कुछ सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे. रीजन ये है कि ऐसी सिचुएशन है, ट्रैवल प्लान हमको पता है, डेस्टिनेशन ए कहाँ पे, डेस्टिनेशन बी कहाँ पे, डिस्टेंस पता है, एयरक्राफ्ट पता है, फ्यूल डाला है, लेकिन विंड्स का चेंज हो गया, शिप का अगर पानी का बहाव चेंज हो गया, दीज आर द सिचुएशन नॉट इन आवर हैंड. Okay, so because of that we can face some problem, but this problem we cannot refer that as a problem or disaster. These are, we are thinking as a minor change depending on the situation, which can be called as a course correction. Because of the situation अगर हमको कुछ चीजें चेंज करके एक्शन लेना पड़ता है तो that is our course correction. So successful transition is a also journey from as is state with organization to the as is. Okay, ऐसा था फिर ऐसे किया और इस वजह से हम लोगों ने इस तरीके से डिसीजन लिया. In dynamic world where the IT service management operator factors occur very often between the initial design of a change or new service and its actual transition, this means the need of course correction. कभी कभी सिचुएशन बेसिस पे हम लोगों को करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं. To the service transition journey, changing the original service design plan for the customer destination. कभी कभी हम लोगों को डिजाइन में भी चेंजेस करना पड़ती है, बट हम लोगों को यहाँ पे ये बताया गया है कि वी नीड टू एंटिसिपेट दैट, हम लोगों को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, और प्लस अगर कुछ ऐसी चीजें हुई तो वो भी प्रॉपरली मैनेज करते आनी चाहिए. व्हाट विल बी द पॉलिसी? Our staff, our employee must be trained in a such a way that they were able to recognize the need of course correction whenever required. जब इंसिडेंट होगा या फिर सिचुएशन चेंज होगी तब वो पहले से ट्रेन होने चाहिए कि क्या करना चाहिए. दे मस्ट बी एम्पावर विथ नेसेसरी वेरिएशन विद इन प्रिस्क्राइब्ड एंड अंडरस्टैंडेबल लिमिट्स. सो उतना ट्रेनिंग उनको पहले से होना चाहिए कि कुछ चीज़ें सिचुएशनल रहती हैं, तो वहाँ का भी अलग से डॉक्यूमेंटेशन रहेगा कि अगर कुछ कंडीशन चेंज होती तो कैसे हैंडल करना है. So there are some principles. We need to build stakeholders' expectation that plans need to be changed and
एनकरेज, उनको बताना चाहिए कि अगर सिचुएशन चेंज होता है तो थोड़ा बहुत सर्विस में वेरिएशन आएगा। तो ये वेरिएशन में हम लोग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बट डिफरेंट रहेगा। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एग्जांपल देता हूँ। क्रिसमस वैकेशन है या दिवाली वैकेशन है, उस ड्यूरेशन में मल्टीपल लोग हॉलीडे रहने की वजह से, घर पे रहने की वजह से अचानक से एक साथ एक से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इंटरनेट यूज़ करते हो सकता है। उस वजह पे उस टाइम पे बिकॉज मल्टीपल यूजर्स आर यूजिंग द इंटरनेट, तो क्या होगा, स्पीड में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, बट वो एकदम लोअर नहीं आना चाहिए, थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है स्टेक होल्डर की, जो यूजर है, उनको भी ये बात पता होनी चाहिए। ओके, लर्न फ्रॉम द पास्ट कोर्स ऑफ, पुराने समय में क्या क्या गड़बड़ी चेंजेस आए थे, तो आप लोग अगर वो लर्न करते हो तो यू कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर इंप्रूवमेंट एंड यू कैन ऑल्सो रीयूज द अप्रोचेस। लास्ट टाइम जो हमने सक्सेसफुली यूज किया था वो हम लोग उसको रीयूज कर सकते हो। लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए, जो भी स्टेक होल्डर है उनसे, ब्रीफिंग एंड डिसमिनेटिंग द नॉलेज अबाउट एंड ऑफ ट्रांजिशन, डी ब्रीफिंग सेशन जिसे कहते हैं। लोगों को बताओ कि अभी हम लोगों ने ट्रांजिशन किया है, ये फेज में टेस्टिंग में ये चीज़ें मिली है, ये चीज़ें चेंज हुई, सो दैट एवरीबडी इज अवेलेबल। ओके, एंड मेकिंग अवेलेबल कंक्लूजन थ्रू नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। Debriefing sessions are again knowledge providing sessions. We also need to manage correction of course through appropriate change management and basic procedure. उसके लिए procedures in the place होनी चाहिए। What are the best practices here? Use project management and change management practice जो standardize है for correction of course, मतलब on time जो आप लोगों को corrections करना है वो। Changes in the documentation and control but without making the process bureaucratic। मतलब आप लोग ऑन द कोर्स ऑन द टाइम पे कोर्स करेक्शन कर रहे हो सिचुएशन के हिसाब से, बट उसका भी आप लोगों को अप्रूवल लेना पड़ेगा, बट अप्रूवल ब्यूरोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक मतलब अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो पहले इसका साइन लेकर आओ, फिर उसका साइन लेकर आओ, फिर वो हाँ कहेगा, वो देखेगा। इट्स सपोज टू बी सिंपल एंड ईजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, बिकॉज द एम ऑफ द कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर इज डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो उसके लिए डिले नहीं करना चाहिए। Provide information on the changes applied after baseline configuration has been set. Involve stakeholder in the changes so that they can give input, और नहीं input भी दिया तो उनको changes तो पता रहेंगे कहाँ पे क्या करना है। Okay, but also you need to manage service transition issues and risk wherever appropriate. Proactively manage resources across the service transition। पूरे सर्विस ट्रांजिशन फेज में पूरी चीजें लाइव एनवायरनमेंट में टेस्ट हो रही है, तो हमारे पास के जो रिसोर्सेस है उसको प्रोएक्टिवली हमको यूज करना पड़ेगा, ना कि रिएक्टिवली। तो रिएक्टिवली कब होगा, वो ऑपरेशन फेज में होगा। ऑब्वियसली ट्रांजिशन फेज कस्टमर को देने से पहले, तो यहाँ पे जिस तरीके से भी हम रिसोर्सेज यूज करेंगे वो क्या रहेंगे, प्रोएक्टिव। व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ स्टेप 11? Provide and manage shared and specialized resources across the service transition activity। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस है, ऑब्वियसली स्ट्रेटेजी फेज में हमको आइडिया था और डिजाइन फेज में हमने फिक्स किया कि कितने रिसोर्सेस, कितने पीपल, कितना स्किल्स हमको लगेगा। ओके, उसको हम लोगों को प्रॉपरली शेयर करना है ऑन टाइम पे, सो दैट इट विल नॉट डिले द सर्विस। व्हाट विल बी द प्रिंसिपल्स हियर? Recognize the resources, skills, and knowledge necessary for organizational service transition, because that is the part of your assets and resources. You need to develop a team which is capable of successful implementing the transition strategy। जो आपने प्लान बनाया टेस्टिंग का वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द डिजाइन पैकेज, डिजाइन में जैसे बोला गया वैसे, एंड द रिलीज पैकेज। तो यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू डिजाइन करना है तो फिर ट्रांजिशन फेज में नया चीज क्या है, ट्रांजिशन फेज में हमको बहुत सारी चीजें लाइव एनवायरनमेंट टेस्टिंग में पता चलती है जो डिजाइन में नहीं कवर हुई है। बिकॉज लाइव एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करना और सिर्फ ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेशन करना, डिफरेंस तो होगा ही। so that difference again going to incorporate it in release package। so you need to develop a team people, जो ग्रुप रहेगा आपका, वो उनको वो पूरी कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू इम्प्लीमेंट दिस सक्सेसफुली वॉट एवर कंप्लीट ट्रांजिशन फेज का। ओके, और उनको अपना काम करने के लिए आपको एस्टैब्लिश डेडिकेटेड रिसोर्स देने चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एस्टैब्लिशिंग एंड मैनेजिंग शेयर्ड रिसोर्सेज टू इम्प्रूव सर्विस ट्रांजिशन efficiently and effectively है वर्ड। देन as we are an IT service, it is better to use automated, repetitive and error sensitive process। क्योंकि अगर कोई चीज़ें बार बार हो रही है और एरर होने के चांसेस है, अगर वो प्रोसेस ऑटोमेट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स हो जाती हैं, so that will improve efficiency and effectiveness of any key activities। for example distribution, installation,
कंस्ट्रक्शन। तो दीज थिंग्स जितना भी ऑटोमेटेड है मशीन के थ्रू हम कर सकते हैं तो बेटर रहेगी। ये पर्टिकुलर चीज़ें अचीव करने के लिए आप लोगों को कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? ह्यूमन रिसोर्स वर्क, एचआर का वर्क प्रॉपरली होना चाहिए, प्रॉपर कैपेबिलिटी के लोग रिक्रूट करें, सप्लायर्स का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए रिसोर्स के लिए। ह्यूमन रिसोर्स वर्क इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम रहता है कि अच्छे एम्प्लॉय आइडेंटिफाई करो जिनमें स्किल्स हो रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी और सर्विस। सप्लायर्स identify, manage and use the competent resource available, recognize and use the competent and specialized resource to deliver the service transition outside the core ITSM team. Again, manage the shared resources proactively to minimize the impact of transition delays on another. अगर आप रिसोर्स प्रोएक्टिवली यूज करते हो और सेम रिसोर्स अगर दूसरी प्रोसेस को चाहिए तो अगर विद इन टाइम पहले वाले प्रोसेस में अगर वो यूज होकर फ्री हो जाता है तो दूसरे ट्रांजिशन के प्रोसेस में डिले नहीं होगा। यहाँ पे रीयूज बोला गया है। जरूरी नहीं कि आप लोगों के रिसोर्सेज एक ही चीज काम करेगा। अगर हार्ड डिस्क है तो उस पर आप नहीं बोलेंगे कि मैं हार्ड डिस्क जिस मशीन पे लगा रहेगा उसमें सिर्फ वर्ड ही टाइप करूंगा। वहाँ पे आप एक्सेल भी यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, इंटरनेट भी सर्व कर सकते हैं। सो दीज रिसोर्सेज आर नॉट फॉर ओनली सिंगल यूज, दे आर फॉर मल्टीपल यूज, बट वो उनका यूज टाइमली फिनिश होना चाहिए सो दैट नेक्स्ट प्रोसेस को अफेक्ट ना हो। प्लस एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेजर द इफेक्ट ऑन डिलेज ऑफ यूजिंग डेडिकेटेड वर्सेज नॉन डेडिकेटेड रिसोर्सेज। डेडिकेटेड मतलब जो पहले से मेंशन है कि ये पर्टिकुलर चीज वहाँ पे यूज होगी। नॉन डेडिकेटेड यूज मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ चीजें एडवांस में कुछ रिसोर्सेज हमने एडवांस में एज अ बैकअप रखे रहते हैं, उसे नॉन डेडिकेटेड रिसोर्स कहते हैं। For example, using operational personal people who are diverted to solve major incident, planning problem with the test facilities. In case of incidents ऐसी चीजें होती हैं। डेडिकेटेड लोगों को फिर नॉन डेडिकेटेड वर्क को भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट इज इंश्योर अर्ली इन्वॉल्वमेंट इन द सर्विस लाइफ साइकिल। सारे लोग जो भी ट्रांजिशन फेज वाले हैं वो स्ट्रेटेजी फेज में भी अगर इन्वॉल्व रहेंगे, उनके मेजर पीपल या डिजाइन फेज में भी अगर उनका इनपुट रहेगा तो उनको पता रहेगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द ट्रांजिशन फेज। The policy here is to establish suitable control and disciplines to check earliest possible stage in the service life cycle, that may be a new or change service, will be capable of delivering the value required. So how to check? Involve early, हम लोग सारी जगह पे present रहेंगे। We can use variety of techniques to maximize the detection of faults early in the service life cycle to reduce the rectification cost. अगर हम लोग पहले से प्रोसेस में रहेंगे तो हम लोगों को पता रहेगा काम कैसे करना है, ना कि अगर अननोन पीपल काम करेगा फिर वो प्रॉब्लम लाएगा फिर उसको रेक्टिफाई करो, उसके लिए अलग से कॉस्ट रहेगा। अनदर थिंग हियर इज टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट डू नॉट डिलीवर एक्सपेक्टेड बेनिफिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि पहले तो हम लोगों ने प्रोसेस किया, फिर किसी ने चेंज सजेस्ट किया, वो चेंज इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कुछ कॉस्ट और टाइम और एफर्ट वहाँ पे डाला, फिर बाद में हमको कंज्यूमर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के तब पता चलता है कि ये जो चेंजेस किए किसी काम के नहीं। So that kind of changes we need to identify, okay, which are not delivering the expected result or benefit to the customer. Either the change the service requirement or stop the resources wasted. So हम लोग क्या करेंगे, ऐसे चेंजेस जो कस्टमर के फायदे के लिए नहीं लेकिन किए गए हैं किसी वजह से, तो उसको हम इमीडिएटली स्टॉप करेंगे ताकि उसमें जो रिसोर्सेज यूज हो रहा है वो फ्री हो जाएगा। What will be the best practice here? Engage the customer or customer representative इन द प्लानिंग एंड टेस्ट डिजाइन, बिकॉज उनका इनपुट रहेगा तो उनका सर्विस एक्सेप्टेंस टेस्ट उनके इनपुट के हिसाब से अगर उनको सर्विस मिला तो उनका एक्सेप्टेंस जल्दी हो जाएगा। ओके, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द सर्विस विल ऐड द वैल्यू टू द बिजनेस प्रोसेसेस एंड सर्विस ऑफ कस्टमर। इन्वॉल्व यूजर whenever possible in test planning and designing so that they will come to know how to use the product, बिकॉज टेस्टिंग के वक्त ही हम लोग कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है। डिजाइन फेज में कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं रहता है तो उनको ज्यादा आइडिया नहीं रहता है, लेकिन वो इनपुट देते हैं। अगर वही कस्टमर अगर टेस्टिंग फेज में रहेंगे तो उनको हाउ टू यूज द रिसोर्स और सर्विस वो भी पता चलेगा, बिकॉज तब कंप्लीट सर्विस बन जाएगा जब लाइव एनवायरनमेंट में वो टेस्ट करेंगे। यूज अर्लियर एक्सपीरियंस टू आइडेंटिफाई, पुराना नॉलेज यूज करिए। बिल्ड एबिलिटी टू चेक एंड डेमोस्ट्रेट at the earliest possible stage a new or changed service should be able to deliver required value. Then यूज इंडिपेंडेंट सर्विस डिजाइन इवेल्यूशन। सर्विस डिजाइन कंप्लीट होने के बाद सर्विस ट्रांजिशन शुरुआत में ही ट्रांजिशन शुरू करने से पहले सर्विस डिजाइन जो बनाया गया है उसका इवेल्यूशन करना चाहिए।
इंटरनल ऑडिट करना चाहिए, क्योंकि वो ट्रांजिशन होने के बाद हम लोगों को फॉल्ट पता चले, इसके पहले अगर हम लोगों को सर्विस डिजाइन का इवैल्यूएशन ट्रांजिशन शुरू करने से पहले ही पता चला कि कुछ फॉल्ट है, तो उतना टाइम ट्रांजिशन फेज का बच जाएगा. नेक्स्ट इज एश्योर द क्वालिटी ऑफ न्यू और चेंज सर्विस. ऑब्वियसली ये सारा प्रोसेस, ये सारी चीजें, ये सारा चैप्टर, ये सारा सिलेबस हम उसी के लिए पढ़ रहे हैं, टू एश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ service to the customer with value in cost effective manner. What is the policy here? We need to verify, validate that the proposed changes to the operational service must define in the service and release definition, service model, and service design package, which is supposed to be deliver the required service requirement and also give the business benefit. That means if we are able to deliver that with quality in cost effective manner, so obviously business को benefit होगा. There are few principles here. Service transition is responsible for ensuring that proposed changes to the operational service can be delivered at agreed level of confidence in accordance with agreement specification and plan. ट्रांजिशन प्लेस इसीलिए किया जाता है, उसका काम ही यही है कि मेक श्योर कि जो डिज़ाइन फेज में, स्ट्रेटेजी फेज में हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस हमारी सर्विस से एग्रीड लेवल पे की है, या फिर उनके जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है वो ऑपरेशन लेवल एग्रीमेंट है, उसमें जो हमने स्पेसिफिकेशन और प्लान बोले हैं वो कस्टमर को मिलना चाहिए. यही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांजिशन फेज का. Here we have to also ensure that service transition team understand what customer and business need. कस्टमर को क्या चाहिए प्लस हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, दोनों ट्रांजिशन टीम को पता होनी चाहिए, सो दैट दे विल improve the satisfaction of customer, user as well as our management. Here, in this phase, quality assurance and testing practices provide comprehensive method to ensure whatever service we are going to deliver is with quality and lower the risk. So here also we will try to optimize the testing effort. टेस्ट एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो जाए, एंड दैट मस्ट रिफ्लेक्ट द लाइव एनवायरनमेंट टू ग्रेटेड एक्सटेंट पॉसिबल. एक्चुअल ऑपरेशन फेज में क्या होने वाला है उसका पूरा का पूरा लाइव यहाँ पे हमको इस टेस्टिंग फेज में दिखना चाहिए. हियर ऑल्सो वी हैव टू टेस्ट द डिजाइन. डिजाइन फेज को भी टेस्ट करना है, एग्जीक्यूशन करना है टेस्टिंग का. दैट सपोज टू बी मैनेज एंड डिलीवर इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द सर्विस डिजाइनर एंड डेवलपर इन ऑर्डर टू इंक्रीज टेस्टिंग इफिशियंसी. जो लोग डिजाइन जिन्होंने बनाया वही लोग टेस्टिंग करने के लिए नहीं होने चाहिए, उनसे इंडिपेंडेंट अलग लोगों ने टेस्टिंग करनी चाहिए. उससे क्या होता है, बायस. अगर मेरे काम को मैं ही चेक और टेस्ट करूँ तो थोड़ा बायस क्रिएट हो जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज ड्यूटी सेपरेशन कंसेप्ट. ड्यूटी सेपरेशन. डिजाइन टीम वाले वहाँ पे ट्रांजिशन फेज को हेल्प कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट टेस्टिंग फेज, ट्रांजिशन फेज मस्ट बी डन बाय इंडिविजुअल पीपल, बिकॉज सेपरेट पीपल, बिकॉज वो उनका बायस वहाँ पे नहीं आना चाहिए. So we have to carry out independent assessment of the service design and the new or modified service to identify the risks to be managed and mitigated or solved during the construction, testing and deployment. Implement the problem and configuration management process throughout the service life cycle to measure and reduce known errors. known errors मतलब previously जो हमको पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम पहले से उसको ठीक करेंगे. ट्रांजिशन फेज ही हमारा लास्ट फेज है, उसमें हम लोग जो चीज़ चाहे कर सकते हैं. What are the best practices regarding this? Understand the process and priorities of business. हमारी पर्टिकुलर प्रोसेस के क्या प्रायोरिटीज़ है, हमारे बिजनेस के प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, क्या लैंग्वेज है, क्या कस्टम है, और हमारे क्लाइंट का क्या लैंग्वेज है, क्या कल्चर है कस्टम से. बिकॉज ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या वैल्यू हम लोग उनको देंगे तो ये सारी चीज़ें टेस्टिंग फेज में ही कंसर्न में आएंगी. सो यहाँ पे ये चीज़ें अचीव करने के लिए क्या रहेगा, कंप्रेसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर इज इंपॉर्टेंट. सारे लोग इन्वॉल्व होने चाहिए. अब सारे लोग जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मतलब 100% कस्टमर या 100% नहीं, उनके रिप्रेजेंटेटिव या उनमें से कुछ लोग, कुछ कस्टमर इन्वॉल्व होने चाहिए, कुछ हमारे एम्प्लॉय होना चाहिए, कुछ सप्लायर के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए. इसका मतलब है सारे मीन्स यहाँ पे मैं नॉट ऑल और ईच एंड एवरी वन नहीं बोल रहा हूँ, सम रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, सो दैट दे विल अंडरस्टैंड एंड इफिशिएंट टेस्टिंग होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उनमें भी, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व. Understand the difference between construction, testing and production environment. These are different things. कंस्ट्रक्शन मतलब डिजाइन फेज रहेगा आप लोगों का, वो बिल्डिंग फेज है. ओके, टेस्टिंग फेज अलग है, और प्रोडक्शन मतलब डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट एक्चुअल कस्टमर को देना, वो अलग है. सो
ये अगर डिफरेंस हमको पता चलेगा तो वी आर एबल टू मैनेज द डिफरेंस एंड वी विल एबल टू इम्प्रूव और हैविंग द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ सर्विस इन द लाइव एनवायरमेंट. So there are two things. When we are saying live testing is a different thing, live environment means operation phase. Live testing is a transition phase. Okay. और लाइव एनवायरनमेंट मतलब ऑपरेशन फेज जहाँ पे एक्चुअल में सर्विस शुरू होगा. Test environment under change and configuration management must be maintained and there must be continued relevance to directly as a considered part of any changes. So obviously change management, configuration management important है. Prepare the current service baselines, the service design baselines before them. Now what are the baseline? Boundary lines कि कितना देने वाले हैं, उसको स्कोप भी कर सकते हैं. प्लस यू हैव टू इवेल्युएट द प्रेडिक्टेड कैपेबिलिटी. हम लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि हमारा क्या कैपेसिटी रहेगा, क्या क्वालिटी और क्या कॉस्ट हम लोग दे सकते हैं. और ट्रांजिशन फेज के बाद में हम लोगों को रियलाइज होगा कि क्या प्रेडिक्टेड था और क्या एक्चुअल है, टेकिंग इनटू अकाउंट प्रीवियस एक्सपीरियंस, रिजल्ट एंड फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर प्रायर टू रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट. क्योंकि एक बार रिलीज और डिप्लॉयमेंट हो गया तो फिर बाकी सब कस्टमर के हाथ में आता है. ओके. मतलब कस्टमर का वहां से फिर आप लोगों के बारे में व्यू बनना शुरू होता है, वेदर यू आर गुड और नॉट. जब तक ट्रांजिशन फेज में तब तक हमारे हाथ में, हमारे एंड पे, तब तक हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं. द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, last point and last step in the principle third 14, proactively improve the quality during service transition. The policy here is that we have to proactively plan, पहले से प्लान करके रखना चाहिए जो जो क्वालिटी हम लोगों को चाहिए न्यू और चेंज सर्विस के लिए. ट्रांजिशन फेज में हम लोगों को कौन सी क्वालिटी अचीव करनी है, ट्रांजिशन फेज में ही पता चलेगा कि हम लोगों ने क्वालिटी अचीव की है या नहीं की है, कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से. So here we have to detect and resolve the incident problems to reduce the likelihood that errors occur during the operational phase. जहाँ पे जितने डिटेक्ट होकर कम होंगे उतने ऑपरेशनल फेज में कम रहेंगे. ट्रांजिशन फेज में जितने ज्यादा डिटेक्ट होते हैं वो अच्छा है, लेकिन अगर वो ऑपरेशन फेज में होता है तो दैट अफेक्ट्स द बिजनेस ऑपरेशन, बिकॉज वहाँ पे कस्टमर का फिर आपकी तरफ का एक लुकआउट बन जाएगा क्या, वेदर योर सर्विसेज आर गुड और नॉट. फिर वो अजम्पशंस और वो अपना मन बना लेंगे आपकी सर्विस के बारे में. तो यही बोलते हैं कि क्लाइंट के हाथ में जाने से पहले प्रोडक्ट आप लोगों का टेस्ट और वेरीफाई होना जरूरी है. प्रोएक्टिवली यू ऑल्सो हैव टू मैनेज एंड रिड्यूस इंसिडेंट प्रॉब्लम एरर्स. ट्रांजिशन फेज में ही करनी चाहिए. इससे बेनिफिट क्या होगा आप लोगों का, जो आप लोग कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो, रीवर्क रिड्यूस कर सकते हो. ओके. Align the incident problem and error management during the transition to production process in order to easily measure and manage the impact of cost of errors throughout the life cycle. So obviously management properly होना चाहिए, processes in order होनी चाहिए, sequentially होने चाहिए, so that impact और cost को हम लोग manage कर सकते हैं. There are few best practices mentioned here. We can compare the actual and predicted capabilities, performance and cost. Okay. तो उसके हिसाब से जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे हम लोग कहाँ पे डेविएशंस आए, कहाँ पे डिफरेंसेस आए, वो आइडेंटिफाई करके रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कंडक्ट द इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ न्यू और मेजर. नाउ यहाँ पे इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, थोड़ा सा अलग है इस पर्टिकुलर 14 पॉइंट में. हमारी कंपनी के लोगों ने अगर हमारे डिजाइन फेज का ट्रांजिशन या टेस्टिंग किया तो भी थोड़ा बायस हो सकता है कि अपने लोग हैं क्यों, क्या है उनका एरर दिखाना. तो कभी कभी क्या करते हैं, थर्ड पार्टी लोगों से, बाहर से कुछ लोगों को असेसमेंट के लिए बुलाया जाता है. नॉट ओवरऑल कंप्लीट ट्रांजिशन फेज, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी लोगों का, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट असेसमेंट और टेस्टिंग पीपल, दे आर गुड इन देयर वर्क, एक्सपर्ट रहते हैं. तो वो क्या रहता है, हम लोगों को ट्रांसपेरेंट रिजल्ट मिलता है टेस्टिंग में सही आया है या नहीं आया है. बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी टेस्टिंग के लिए सेपरेट आउटसोर्सिंग किया जाता है. नॉट बिकॉज कि उनके टेस्टिंग के टीम वाले गड़बड़ है, नहीं, बट टू हैव एन मोर ट्रांसपेरेंसी टू द वर्क. So we need to conduct an independent assessment of new or modified service. Okay. Risk profile, we need to prioritize the risk that's supposed to mitigate it before transition closure. Risk to security that may affect warranties. Okay. Use the service design assessment risk profile to develop risk being tested. Provide and test the diagnostic tools. पहले लोगों को टेस्टिंग के लिए टूल्स दो, डायग्नोस्टिक टूल्स दो, उनको टेस्ट करो, एड्स दो, हेल्प दो, सर्विस डेस्क, ऑपरेशन डेस्क, सपोर्ट स्टाफ, उन लोगों को इंफॉर्मेशन दो, सो दैट
while they will work actually in operation phase, it is going to be very easy for them to obtain key information so that they can also able to diagnose the problem without affecting the user too much if something goes wrong. टेस्टिंग फेज में चीज़ों को कैसे टेस्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये अगर सर्विस डेस्क को पता रहेगा तो जब कस्टमर कॉल करेगा तो सर्विस डेस्क कैन गिव देम आंसर. एनकरेज नॉलेज क्रॉस फर्टिलाइजेशन. ऐसा ज़रूरी नहीं कि टेस्टिंग वाले का नॉलेज डिज़ाइन को नहीं होना चाहिए. सो आपको ट्रांजिशन एंड ऑपरेशनल स्टेजेस में जो लोग इन्वॉल्व है वो एक दूसरे को अपना नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग डायग्नोस्टिक एंड टाइम रिजोल्यूशन. कब फिक्स करना है, कैसे करना है, वर्क अराउंड मतलब सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम, establish transition incidents, problem, errors, and processes of resolution, and measure that reflect in measures मतलब जो हम लोग को टेस्ट और इवेल्युएट करना है दैट मस्ट बी रिफ्लेक्ट इन लाइव एनवायरनमेंट. फिक्सिंग नोन एरर्स, अगर हमको पहले से पता है तो उनको फिक्स करना है. रिजॉल्विंग इंसिडेंट को रिजोल्यूशन प्रायोरिटी, कौन सी चीज़ पहले सॉल्व करनी चाहिए. इंपॉर्टेंट पार्ट जो सब लोग थोड़ा सा लेस ध्यान देते हैं, डॉक्यूमेंट एनी रिजोल्यूशन. जो भी चेंजेस, जो भी रिजोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन आप देते हो, जो भी वर्क अराउंड आप करते हो, वो सारा डेटा आप लोगों को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में उसका यूज़ कर सके या फिर उसको एनालाइज करके और फर्दर कोई दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. हियर वी हैव टू बी प्रोएक्टिव इन दिस स्टेप. प्रोएक्टिव एनालाइज द हाई प्रायोरिटी रूट कॉज एंड द रिपीट इंसिडेंट्स, क्योंकि वो बार बार हो रहे तो हम लोगों को रूट कॉज पता करके उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा. So this is the end of service transition principle. Here are some questions. What is service transition? Principles of supporting service transition. By looking at the question, you might have some idea about what kind of question can be asked in the exam. So I am keeping the screen open for you. Thank you so much, students, for patiently listening to today's lecture. Thank you.